Hi guys, since only 15 days are left for the phase 1 of SEBI grade A legal examination, so it is very important for you to understand that at this moment of time you must have a smart strategy to clear the phase 1 of the examination. So that is why in this video we are going to discuss the smart strategy to clear the phase 1 of the examination. So let's proceed without wasting much time. But before starting, one very important thing, that if you are appearing for any examination, so referring PYQ is must. So that is why for this examination also you have to refer the previous year question in order to make any strategy. But guys, since this is a computer based examination, so compiling PYQ is a difficult task, but we at EduTap have compiled for you the previous year questions of 2022 and 2020, the link of which is given in the description box below. So you have to refer the link and you have to download the same. And guys, not only download it, you have to refer it on a regular basis, right? Now guys, चलिए start करते हैं then. So before starting, one very important thing is that you must understand the pattern of phase 1 of the examination, क्योंकि यहीं से आपकी strategy form होगी, right? So what is the pattern? So if I talk about phase 1 of the examination, so it comprises two papers, paper 1 and paper 2. So paper 1, if I talk about first, so paper 1 comprises of further 4 components, that is quantitative aptitude, reasoning ability, English and general awareness. Maximum marks assigned are 100 and maximum duration is 60 minutes and the cutoff is 30%, right? Second, if I talk about paper 2, so it comprises of multiple choice questions on legal subject. So 50 questions will be there, 2 marks each, which makes total of 100 marks. 40 minutes will be given for that and 40% is the cutoff. So if I talk about paper 1 guys, so here 80 questions will be there, 20 questions from each component, that is quant, reasoning, GA and English, right? तो वहां सबसे 20 questions रहेंगे, 80 questions रहेंगे, पर क्वेश्चन विल बी 1.25 मार्क्स और यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2. बट very good thing here with respect to the phase 1 of the examination, two very important thing. Number first is that there is no sectional cutoff for any section. So if I talk about quantitative aptitude, if I talk about reasoning, कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है. इफ यू वांट यू कैन स्किप दीज सेक्शंस, राइट? आप चाहे तो आप 3 सेक्शंस में से या दो सेक्शंस में से मिलाकर 30 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं. सो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन यू कि आपको सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे कंपोनेंट अटेम्प्ट करने हैं. इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इफ यू आर कंफर्टेबल इन जनरल अवेयरनेस, देन गाइस उसको अटेम्प्ट करिए, 30 मार्क्स स्कोर करिए एंड योर वर्क विल बी डन. फिर उसके बाद आपको नहीं सोचना कि आपने क्वांट में एक भी अटेम्प्ट नहीं किया, रीजनिंग में यू हैव नॉट अटेम्प्टेड इवन अ सिंगल क्वेश्चन. यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, राइट? यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. सो दोज हु फील दैट दे आर वीक इन एनी कंपोनेंट गाइस, दिस इज अ काइंड ऑफ हेजिंग फैक्टर फॉर देम, राइट? और यहाँ पे सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट देयर इज अ फिक्स्ड कट ऑफ, दैट इज 30 मार्क्स. 30% is 30 marks. So out of 100, you just need to score 30 marks in paper 1 and your task will be done. ठीक है, आपका काम खत्म हो जाएगा. यू जस्ट नीड टू स्कोर 30 मार्क्स. अब वो 30 मार्क्स आप किसी भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से यू कैन स्कोर. यू कैन स्कोर फ्रॉम द क्वांट एंड रीजनिंग, यू कैन स्कोर फ्रॉम द जीए एंड इंग्लिश, वट एवर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इट कैन बी, यू कैन स्कोर 30 मार्क्स. ठीक है, आपको जस्ट 30 मार्क्स स्कोर करना है और आपका काम वहां पे हो जाएगा पूरा, राइट? इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, 2 मार्क्स ईच. ठीक है, 50 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच की होंगे. सो दैट मेक्स 100 टोटल एंड 40 मिनट्स विल बी असाइंड एंड द कट ऑफ इज 40%. ठीक है, तो यहां पे आउट ऑफ 100 यू जस्ट नीड टू स्कोर 40 मार्क्स. 40 मार्क्स ही आपको स्कोर करने हैं. और आपने अगर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे अगर आपने एग्रीगेट 40% स्कोर कर लिया, सो फेज 1 आपका क्लियर हो रहा है एंड यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर फेज 2. ठीक है, सो यहाँ पे आपको 30 लाने हैं और यहाँ पे आपको 40% लाने के लिए आपको यहाँ पे 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे पेपर 2 में. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज इंटीग्रेटेड कट ऑफ में आपको 80 आउट ऑफ 200 लेकर आना है. सो इफ यू आर स्कोरिंग 30 मार्क्स इन पेपर 1, देन इन पेपर 2 में आपको 50 मार्क्स करने पड़ेंगे. अगर आप यहाँ पे 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 40 मार्क्स ही रहेंगे, राइट? आई होप यू आर गेटिंग इट कि दोनों पेपर का मिलाकर 80 मार्क्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग कि इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर हो रहे हैं, राइट? सो दिस इज द पैटर्न. सो यहाँ पे सबसे बड़ी लर्निंग क्या है गाइस कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, राइट? सो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि इफ यू हैव नॉट योर प्रिपरेशन, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन येट, और इफ यू आर इन द मिडिल ऑफ योर प्रिपरेशन, देन आल्सो यू कैन क्लियर द फेज 1 ऑफ दिस एग्जामिनेशन. अब इसको करना कैसे है, किस तरीके से यू कैन इजीली स्कोर 80 मार्क्स, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. So here you can see, if I talk about first paper 1 of phase 1, right? पहले paper 1 of phase 1 की बात कर ले. So here you can see, first of all, if I talk about English, so English आपको कैसे prepare करनी है, how you need to prepare English component, so you have to refer previous year questions only, that will be sufficient. English
सेबी ग्रेड ए के एग्जाम में बहुत ही इजी आता है, ठीक है, बहुत ही इजी रहता है, काफी स्कोरिंग भी है। तो यू जस्ट नीड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेपरेटली, यू आर नॉट सपोज टू डिवोट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश, राइट। यहां पे आउट ऑफ 25 मार्क्स, 25 मार्क्स में से बहुत ही आराम से लोगों के 23-24 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत आराम से 23-24 मार्क्स इजिली कैंडिडेट्स स्कोर एवरी ईयर। सो यहाँ पे आपको चीज ध्यान रखनी कि आपको सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपको एग्जामिनेशन में फर्स्ट आपको इंग्लिश वाला कंपोनेंट ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप रीजनिंग से मत स्टार्ट करिए अगर आपका रीजनिंग वीक है तो, आप कॉन्ट से मत स्टार्ट करिए अगर आपका कॉन्ट वीक है तो, आपका जो भी सेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपको वहीं से स्टार्ट करना है। सो आई एम कंसीडरिंग कि इंग्लिश क्योंकि काफी ईजी होता है तो आपके लिए भी ईजी होगा। सो यू हैव टू स्टार्ट विथ इंग्लिश फर्स्ट, ठीक है, आपको पहले इंग्लिश में ही यहाँ पे स्टार्ट करना है। एंड आई एम कंसीडरिंग कि आउट ऑफ 25 अगर आप 20 क्वेश्चंस भी यहाँ 20 मार्क्स भी यहाँ से स्कोर कर पा रहे हैं, राइट, क्योंकि बहुत इजी है गाइस, 20 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लेंगे, देन उसके बाद रेस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट्स में से यू हैव टू जस्ट स्कोर 10 मार्क्स, ठीक है। तो आपको सिर्फ 80 बचे हुए 80 मार्क्स में से सिर्फ आपको 10 मार्क्स ही स्कोर करने हैं गाइस, सॉरी, रेस्ट ऑफ द 75 मार्क्स में से आपको फिर 10 मार्क्स ही आपको स्कोर करने। व्हाई दिस इज सो, क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी 20 मार्क्स स्कोर कर लिया है, राइट। So here you can see, if I talk about GA, तो GA कैसे प्रिपेयर करना है? For GA, you just have to refer only latest 3 months current affairs, सिर्फ और सिर्फ 3 months के, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। A lot of aspirants are there जो कि एक साल का GA पढ़ रहे हैं, guys, not required for SEBI grade A legal examination. Why this is so? क्योंकि यहाँ पे जो phase 1 के मार्क्स हैं वो नहीं काउंट होंगे phase 2 में, फिक्स कट ऑफ है, चाहे आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ जाएं, चाहे आप 30 आउट ऑफ 100 लेकर आ जाएं, दोनों के दोनों कैंडिडेट ही phase 2 लिख रहे होंगे, राइट। सो बेहतर है कि हम 30-40 के लिए स्कोर टारगेट रखें, हम 100 के लिए टारगेट ना रखें, क्योंकि अगर आप 100 के लिए टारगेट रखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको डिवोट करना रहेगा और वो जो टाइम है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि उस टाइम को आपको पेपर 2 ऑफ फेज 2 की प्रिपरेशन में लगाना है, राइट। सो यहां पे जीए के केस में यू जस्ट हैव टू रेफर 3 मंथ्स करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो कि आपका हो जाएगा मई जून एंड जुलाई, मई जून एंड जुलाई के ही जनरल अवेयरनेस आपको करने हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आता है गाइस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। सो यहाँ पे क्या क्वांट के आपको सारे टॉपिक्स करने हैं? नो, क्वांट को बहुत ही सिलेक्टिव करना है, बहुत ही सिलेक्टिव गाइस। सो इफ यू हैव कवर्ड 30-40% ऑफ सिलेबस, ठीक है, अगर आपने 30-40% ऑफ सिलेबस भी किया है क्वांट का, सो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, राइट। सो सिलेक्टिव कवरेज मस्ट बी देयर, आपको सिर्फ ये टॉपिक्स करने हैं। If you have not done anything in quant, so you just have to do these topics, that is number series, quadratic equation, percentage, ratio, data interpretation। सिर्फ आपने अगर ये टॉपिक्स कर लिए गाइज, आराम से, बहुत ही आराम से you are going to score 7 to 8 मार्क्स, 7 to 8 मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपको टोटल चाहिए कितना? 10 मार्क्स चाहिए थे, जिसमें से आप जीए में भी आराम से 7 to 8 मार्क्स स्कोर कर लेंगे इफ यू हैव डन 3 मंथ्स करंट अफेयर्स। उसके बाद अगर आपने ये टॉपिक्स बहुत ही बेसिक लेवल पर भी कर लिए, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू स्कोर 7 to 8 मार्क्स, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, सो रीजनिंग में भी यू हैव टू कवर इट वेरी सेलेक्टिवली, राइट। पूरे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं बिकॉज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सेबी ग्रेड ए लीगल। सो हियर यू हैव टू डू टॉपिक्स सिलोजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी एंड डायरेक्शंस। सिर्फ यही टॉपिक्स करने हैं एंड गाइस यहाँ पे इन टॉपिक्स को करने के बाद यू कैन इजीली स्कोर 7 to 8 मार्क्स बहुत आराम से, ठीक है। तो हियर यू कैन सी कि आप यहाँ पे अगर इन तीनों कंपोनेंट को फॉलो करते हैं तो आप आराम से 24-25 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं और आपने 20 मार्क्स पहले ही स्कोर कर लिया है, ठीक है। बट टू बी ऑन अ सेफर साइड, आपको ये सारी चीजें आप कर लीजिए, आप आराम से 40 प्लस मार्क्स ही आपके आएंगे पेपर 1 में। हमें कितने चाहिए? 30 मार्क्स, बट आपके 40 प्लस मार्क्स ही आएंगे, 40-45 के आसपास मार्क्स आएंगे। सो आपको सिर्फ इतना ही करना है गाइस, और ज्यादा एफर्ट आपको पेपर 1 के लिए नहीं लगाना है। बट हाँ, ये एफर्ट जरूर लगाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको भी छोड़ दें। दिस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, आपको ये एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। So this is with respect to the paper 1 of phase 1. If I talk about paper 2 of phase 2, so paper 2 of phase 2 का जो syllabus है guys, उसको भी बहुत ही selectively पढ़ना है. Why this is so? Because the syllabus of phase 1 paper 2 and phase 2 paper 2 is completely different this year. So whatever you are reading for the phase 1 preparation, वो that is not going to be counted. That is not going to be helpful for you in phase 2 paper 2, right? तो इसीलिए आपको बहुत ही selectively यहाँ पे पढ़ना है, so that यहाँ पे आप सारी चीजें सिर्फ अच्छे से स्कोर करने के लिए कवर कर सके, राइट। तो आपको स्कोर कितना करना है? आपको टारगेट रखना है 50 मार्क्स का, बस 50 मार्क्स का यू हैव टू टारगेट पेपर 2 ऑफ फेज 1 में, सिर्फ 50 मार्क्स ही स्कोर करना, राइट। क्योंकि आपको उसके अलावा जो टाइम है दैट यू हैव टू डिवोट फॉर द फेज 2 पेपर 2 प्रिपरेशन।
सो इफ आई टॉक अबाउट कि आपको इस वाले सिलेबस में से कैसे पढ़ना है रिमेनिंग 15 डेज में, राइट, मार्क माई वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट रिमेनिंग 15 डेज, राइट। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपियर हो रहे हैं गाइस, आप आराम से पढ़ते रहिए, बट इफ यू आर अपियरिंग फॉर दिस ईयर सीरियसली, सो गाइस ओनली 15 डेज आर लेफ्ट, और उस 15 डेज में हाउ यू कैन स्कोर 50 मार्क्स, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इजी है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे ही आप कर लेंगे 20% मार्क्स आप यहां पे स्कोर कर सकते हैं। एंड गाइज entire constitution is not required, you just have to do only these parts which are mentioned in your syllabus, ठीक है। सिलेबस में जो चीजें मेंशन है सिर्फ आपको वही करनी है। सो कीप माई वर्ड्स गाइज कि यहाँ पे आपको सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कवर करना है। सिलेबस आपका बहुत अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड है। सो इफ यू आर फॉलोइंग द सिलेबस, यहाँ पे सारी चीजें सिलेबस से ही आती हैं सेबी के एग्जामिनेशन, राइट। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ आपको करना, ये सारे एक्ट्स भी बहुत छोटे हैं गाइस, ठीक है, बहुत बड़े एक्ट नहीं है, ये भी बहुत छोटे हैं, 3 से 4 दिन के अंदर आपके ये फिनिश हो जाएंगे। एंड आफ्टर फिनिशिंग इट फर्दर 25% वेटेज कवरेज आप और कवर कर लेंगे। मतलब अगर हम इसको क्लब करें, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 हेड्स यू विल बी एबल टू कंप्लीट अराउंड 45% ऑफ द पेपर ऑफ द सिलेबस। देन उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू स्किप कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। सीपीसी आपको नहीं पढ़ना है, फॉरगेट इट, भूल जाइए कि सीपीसी आपके सिलेबस में है, सीपीसी आपको छोड़ देना है गाइस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अगेन यू नीड टू रिमेंबर दैट ओनली 3 चैप्टर्स आर रिक्वायर्ड, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा नहीं पढ़ना है, राइट। बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है गाइस। देन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन पढ़ेंगे, ओनली पार्ट 1, ठीक है, सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ना है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इफ आई टॉक अबाउट लिमिटेशन एक्ट, छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि लिमिटेशन एक्ट आपके सिलेबस में है, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट यू आर नॉट सपोज टू कवर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको नहीं करना है, सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कर लीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट विल बी सफिशिएंट, राइट। देन ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको नहीं करना है, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, लीव इट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक फॉर एग्जांपल गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मिसचीफ रूल हो गया आपका, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सारे रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में ओनली रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आर इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू कवर। इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स एंड मैक्सिम्स काफी इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको काफी अच्छे से कर लीजिएगा गाइस। सिर्फ आपको गूगल करना है, गूगल करके यू कैन collect the 100 to 150 important Latin terms and maxims that are often asked in the examination, so वही कर लेंगे, that will be sufficient। and law of torts काफी लिमिटेड आपको इसमें पढ़ने का भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इसमें, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का, ठीक है। तो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, बस आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आपको अच्छे से करना है, इसको थोड़ा डीपली कवर कर लीजिएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सो दिस यू हैव टू डू, और इसी सीक्वेंस में करें, और जो चीज यहाँ पे बताएगी कि नहीं करना उसको कंप्लीटली छोड़ दीजिए गाइस। ऐसा सब करने के बाद यू विल इजीली कंप्लीट अराउंड 80% ऑफ द पेपर, 80% आप कर लेंगे, जिसमें से यू जस्ट हैव टू स्कोर 50 मार्क्स, और बहुत आसानी से आएंगे। अगर आपने सारी चीजें कर ली गाइस, तो आपके आराम से 60+ मार्क्स ही आने वाले हैं, राइट। बट एक फर्दर एक क्वेश्चन आता है गाइस कि क्या ये जो हमें यहाँ पे मेंशन है, क्या ये सारी चीजें पढ़नी है, लाइक फॉर एग्जांपल 15 डेज में कंप्लीटिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, काफी टीडियस टास्क है, राइट। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे भी हैं, तो क्या ये सारा का सारा पढ़ना है? नो फ्रेंड्स, सारा का सारा नहीं पढ़ना है। फर्दर इसमें भी आपको फिल्टर लगाने हैं, एंड यू जस्ट हैव टू रीड द इंपॉर्टेंट सेक्शंस, एंड फ्रॉम वेयर यू विल गेट दैट, यू विल गेट दैट फ्रॉम दिस वीडियो। So those who have not watched this video guys, do watch this video, ठीक है। 100 most important topics for paper 2 of phase 1। Here I had already mentioned कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक्स में भी कौन कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मार्क करके बताया हुआ गाइस। सो डू रेफर दिस वीडियो, यू विल गेट टू नो कि रिमेनिंग टॉपिक्स में से कैसे पढ़ना है, क्या सेक्शंस पढ़ने, राइट। उतना पढ़ने के बाद यू विल डेफिनेटली स्कोर 60+ मार्क्स, बट आपको रिक्वायरमेंट सिर्फ 50 मार्क्स तक की ही है, राइट। बट सिर्फ यही कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी मत करिएगा, राइट। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है इसकी आपके लिए डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि आपने काफी पहले पढ़ा था, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, अगर ऐसा कुछ लग रहा है, सो वी हैव लॉन्च्ड 2 डिफरेंट कोर्सेज फॉर यू। लाइक सबसे पहला हमारा लाइव क्रैश कोर्स फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। द यूनिक फीचर ऑफ दिस क्रैश कोर्स इज वी आर प्रोवाइडिंग यू 60+ लाइव क्लासेस,
60 प्लस लाइव क्लासेस आर देयर, राइट। यहाँ पे 60 प्लस लाइव क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि सारे ही टॉपिक्स को फेज 1 फेज 2 के, पेपर 1 पेपर 2 के सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। हमारा जो स्पेशल फोकस होगा दैट विल बी ऑन सिक्योरिटीज लॉज, कॉर्पोरेट लॉज एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। इस पे हमारा स्पेशल फोकस रहने वाला गाइस, क्योंकि ये वो कंपोनेंट है जो जनरली आप नहीं पढ़ते हैं अपने ग्रेजुएशन करिकुलम में। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो आपने की होती है, बट आप सिक्योरिटीज लॉज और कॉर्पोरेट लॉज जनरली नहीं पढ़ते, ना के बराबर ही कवर करते हैं। सो वी विल हैव स्पेशल फोकस ऑन दिस कंपोनेंट। एंड फर्दर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का इवैल्यूएशन। ठीक है, यू नो वेरी वेल कि दिस ईयर SEBI has introduced descriptive component in paper 2 of phase 2. तो यहाँ पे we are providing you the evaluation facility where we will evaluate your descriptive answer and we will let you know कि कहाँ पे आप mistakes कर रहे हैं and what are the areas where you can improve, right? So ये game changing होने वाला है this year, क्योंकि वो 30 marks बहुत important होने वाले हैं। तो जिसकी भी command अच्छी है उन 30 marks पर guys, वो definitely एक edge factor होगा उनके लिए, and there is a high probability कि वो लोग interview में appear हो रहे हैं, right? So this is one course guys. If you want to avail this course, we are running very good डिस्काउंट, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं गाइस। बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है, बट दैट इज फॉर वेरी लिमिटेड टाइम। सेकंड कोर्स इज टेस्ट सीरीज फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2। यहाँ पे हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू विल गेट एवरीथिंग इन टेस्ट सीरीज एक्सेप्ट वन थिंग, दैट इज लाइव क्लासेस। आपको लाइव क्लासेस इसमें नहीं मिलेंगी, विच वॉज अ पार्ट ऑफ क्रैश कोर्स, बट यहाँ पे टेस्ट सीरीज में यू विल नॉट गेट द लाइव क्लासेस। बाकी सारे फीचर सेम ही है, चैप्टर वाइज क्विज भी आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव इवैल्यूएशन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, बट यहाँ पे लाइव क्लासेस यू विल नॉट गेट। ठीक है, सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप बिना लाइव क्लासेस के सिंपली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आप कर सकते हैं, देन यू कैन हैव टेस्ट सीरीज। बट इफ यू फील कि आपको रिवीजन की जरूरत है थ्रू द क्लासेस, so guys crash course will be best for you, right? Again इसका भी यहाँ पर guys जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, so do refer the link and if you want to avail this course do check the link। वहाँ पे बहुत अच्छा भी डिस्काउंट हम चला रहे हैं इसके लिए, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। so if you want to avail it guys, आप उसको अवेल कर सकते हैं। so this is all guys, I hope आपको समझ में आएगी फेज 1 को इस लिमिटेड टाइम में किस तरीके से प्रिपेयर करके क्लियर किया जा सकता है, राइट? so follow this strategy, this will definitely help you, right? चलिए guys, thank you very much, we'll meet in another session, till then goodbye and happy learning friends।